राष्ट्रगान के समापन के बाद प्रधानमंत्री मंच की ओर जा रहे हैं। राज्य प्रधानमंत्री का दूसरा मुख्य दौरा अतिथि, है ईटानगर में। भारत के पिछली बार प्रधानमंत्री वो दो हैं देश। जोरदार तालियों के साथ प्रधानमंत्री महोदय जी का अपने नए प्रधानमंत्री को फिर अब मंच पर आसन ग्रहण करते हुए हवा हिमालय की शिवाली प्रकाश की भारत के प्रधानमंत्री स्वागत करते हैं, हार्दिक हैं। इस विशेष अवसर पर अरुणाचल में आपको पाकर हम पुलक मधुर और हम आप आभारी हैं कि आप हम आपका मेहमान हमारे लिए होते हैं और पारंपरिक रूप से करना हमारी परंपरा रही है। इसे खूब माननीय स्वीकार करें। मंच मैं पर माननीय उनके मुख्यमंत्री साथ महोदय जी से निवेदन भी शामिल हैं और मुख्यमंत्री श्री नाबम तुकी कल्चरल सूवेनिर प्रेजेंट Speech by Sri Minister. महामहिम सन्नी जी, मंच पर विराजमान जी मित्र और अरुणाचल प्रदेश के आज के स्थापना हमारे प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए उपस्थित, आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि ऐसे सुनहरे दिन, ऐसे बहुत ही आनंददायी दिन, जिस दिन आप सब लोग हमारी राज्य की स्थापना दिन को मना रहे, उसी दिन मेरे लिए एक गर्व की बात है कि भारतीय रेल की तरफ से एक छोटा सा तोहफा देने के लिए हम दिल्ली से आपको मिलने के लिए आए हैं। इट्स अ रियली a very heartening thing that we'll be inaugurating, the Prime Minister will be launching 21.75 kilometer line linking Itanagar to the Assam, and eventually we'll be able to launch a train which will link a national capital with a state capital. It's an endeavor of the central government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji to link all the rich state capitals of the northeastern states to the each other. This is the plan which is going to be now successful in the next few years' time, which will bring in 54,000 crores of investment in 23 projects in the northeastern states. In fact, even in this year itself, 14-15, we'll be spending 5,500 crores on railway projects in northeastern states alone. This is the easternmost state of India, and therefore we always first worship sun which rises here first, and therefore I really wish that this new beginning, new dawn is going to be making people of Arunachal happy, people of northeastern happy, linking them to rest of the country, and together will bring a prosperous India under the leadership of our Prime Minister. So thank you very much. Now, speech by Chief Minister of Arunachal ये थे Pradesh, Shri Nabum Tuki. केंद्रीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु, जिन्होंने जनता को संबोधित किया। अब कुछ ही देर में उनके बाद हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री नाबम तुकी जनता को संबोधन करेंगे। Honorable Prime Minister, most respected Sri Narendra Modi ji, His Excellency the Governor of Arunachal Pradesh, Lieutenant General Nirvay Sharma ji, Honorable Union Minister for Railways, Sri Suresh Prabhu ji, Honorable Union Minister of State for Railways, Manoj Sinha ji, Honorable Union Minister of State for Home, Sri Kiran Rijiju ji, Honorable Speaker of Arunachal Pradesh Legislative Assembly, Sri Nabam Revia ji, Honorable Home Minister, Honorable Ministers, Honorable MPs, Honorable Parliamentary Secretaries, Honorable MLAs, Secretary Government of India, senior officials and officials of Government of India, distinguished guests, media friends, my dear sisters and brothers. I, on behalf of the people of Arunachal Pradesh, take this sanguine opportunity to extend warm and hearty welcome to our beloved Prime Minister, Sri Narendra Modi ji,
on his maiden visit to state after assuming the high office as the Prime Minister of India. We also extend our greetings and thank your kind honor for being with us today to celebrate the 29th Statehood Day. Sir, we congratulate you for the initiatives you have undertaken for the country and believe that under your able leadership, India, Northeast in particular, will witness imprints of visible and concrete development. I also welcome all the distinguished dignitaries and Arunachal Pradesh today enter its 29th year of statehood. Since attainment of statehood on 20th February 1987, we have had fruitful journey of progress and ably emerged as a distinct and determined state, rubbing shoulders with our peers with pride. I greet all my fellow Arunachalis and extend my heartiest greetings. Our state is endowed with unparalleled natural resources, 82% quality forest, huge potential in agriculture, horticulture, temperate and tropical, unique geology with high quality reserves of coal, oil, in addition to other minerals such as graphite, dolomite, etc. Matchless tourism potential, treasure house of rare medicinal plant. The perennial rivers of my state has earned our state the name hydropower capital of India. However, because of institutional bottlenecks, unfavorable policies, protracted procedure for clearances, and perceived low priority reason, these resources are yet to be sustainably harnessed. The net result is deprivation to the people of both state and the nation. The point I am trying to make is that is unmatched strength can be harnessed for the mutual benefit of the nation and the state. In other words, it is not grant, it is an investment which surely has its returns. Taking advantage of the occasion, I would like to highlight some pro-people initiative of my government. A universal health insurance scheme for cashless treatment up to rupees 2 lakh annually covering the total population of Arunachal Pradesh. We have materialized this program by increasing tax levied from excise and tobacco products. The state government also firmly believes that decentralization is the best form of governance. Accordingly, we have taken adequate steps in empowering the local self-government, panchayats and urban local bodies. As a result, Arunachal Pradesh has improved its national ranking in devolution of powers from 27th to 5th, which is a testimony of our commitment in giving power to people. Rajdhani Express from Naharlagun, New Delhi, all are witness the history today. With Itanagar water supply, we are Prime Minister, growth of the state, and also the people of this beautiful border state and demands placed before your kind by the union government holder in the journey building India as a comprehensive और schemes जिसका engineer है much awaited AC Naharlagun and New Delhi. के साथ-साथ रेलवे स्टेशन से ये एक्सप्रेस प्रधानमंत्री जैसा कि आप देख रहे हैं हरी झंडी दिखा रहे हैं और ये नाहरलगुन न्यू दिल्ली एक्सप्रेस अपनी पहली जर्नी प्रारंभ कर चुकी है। आपकी स्क्रीन में दाहिने ओर के शॉट्स नाहरलगुन रेलवे स्टेशन से सीधा प्रसारित किया जा रहा है। The AC Express between Naharlagun and New Delhi flagged off. The first ever AC Express train leaves the platform.
We can also see the inauguration of the After the- intercity of the AC Express, Naharlagun to New inauguration Delhi. of water supply Now, scheme for Itanagar. inauguration of water supply scheme for Itanagar. The laying of foundation stone of 132 kV transmission line. Now, You address can see the train by the leaving the Prime Minister. platform. The first train to leave the platform from Naharlagun, reaching Delhi in 38 hours. इस रेल की सवारी बहुत ही उल्लास के साथ दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं। ये है प्रथम रेल सर्विस नाहरलगुन से जैसा कि आप देख रहे हैं, जनता बहुत ही उल्लास के साथ मोदी जी के स्पीच के लिए मंच पर विराजमान अरुणाचल के गवर्नर, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल श्रीमान निर्भय शर्मा जी, राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान नवाब तुकी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी, रेल मंत्री श्रीमान सुरेश प्रभु जी, केंद्र में रेल राज्य मंत्री श्रीमान मनोज सिन्हा जी, केंद्र में मेरे साथी और इसी धरती के संतान गृह राज्य मंत्री श्रीमान किरण रिजिजू जी, विधानसभा के स्पीकर श्रीमान नबाम रेबिया जी, राज्य सरकार के गृह एवं ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीमान तंगा जी, मुख्य सचिव श्रीमान रमेश नेगी जी और विशाल संख्या में पधारे हुए अरुणाचल के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जय हिंद। शायद हिंदुस्तान में इसी प्रदेश के लोग ऐसे हैं जो किसी को भी जब ग्रीट करते हैं तो जय हिंद करके ग्रीट करते हैं। और सारे देश के लिए भारत के हर नागरिक के लिए अरुणाचल ने ये जो परंपरा बनाई है, ये परंपरा प्रेरणादायक है, अनुकरणीय है और इसके लिए मैं अरुणाचल के नागरिकों को उसकी इस महान परंपरा के लिए आदरपूर्वक वंदन करता हूं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए आज ये सौभाग्य की बात है कि राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर आपके बीच ये उत्सव मनाने का सौभाग्य मिला है। हमारे मुख्यमंत्री जी
हमारे गवर्नर श्री सबसे है यहां का, लेकिन उत्सव को इस अवसर पर 28 साल में उससे अनेक गुना प्रगति 5 साल में आप कर पाएंगे, ये मैं आपको दिल्ली की यात्रा और ये न्यू एसी अनमोल भेंट आज आपके देश के विकास में अगर तो वो बाधा रेल, ये कनेक्टिविटी की उत्तर की ताकत राष्ट्र के विकास में काम आने वाली है। और एक प्रकार दिलाता हूं, और यहां की खूबसूरत वादियां, यहां बहुत लोग, यहां का इतना शुद्ध माहौल शायद हिंदुस्तान में किसी एक जगह पे इतना अच्छा क्लाइमेट हो, एनवायरनमेंट हो, तो शायद उस प्रदेश का नाम अरुणाचल है। जिस प्रकार के फल फूल अरुणाचल में होते हैं, वे अगर यहां की हवा शुद्ध न होती, यहां का वायु शुद्ध न होता, यहां की प्रकृति शुद्ध न होती, तो वो फूल फल यहां हो ही नहीं सकते थे इतनी बड़ी मात्रा में। और ये यहां के शुद्ध हवामान का परिचायक है। और ये ऐसे ही नहीं रहा है, आप लोगों ने प्रकृति को प्यार किया है, आप लोगों ने प्रकृति की पूजा अपनी जिंदगी मानी है, और प्रकृति का विनाश आपको मंजूर नहीं है। ये आपके संस्कार है, आपकी परंपरा, इसने आज अरुणाचल को बचाया हुआ है। और इसलिए आपकी इस महान परंपरा को भी मैं हृदय से वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। रेलवे सिर्फ यातायात का साधन नहीं होता है। एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचने के लिए जैसे स्कूटर है, साइकिल है, मोटर है, इतना मात्र रेलवे नहीं है। रेलवे का नेटवर्क एक प्रकार से विकास के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी का रोल होता है, वैसे ही भारत के अर्थतंत्र को ताकत देने में रेलवे का योगदान हो सकता है। और इसलिए अरुणाचल प्रदेश के अर्थतंत्र के विकास के लिए भी ये रेलवे एक ताकत बनेगी। रेलवे सिर्फ आवागमन का साधन नहीं, लेकिन विकास का एक इंजन बन के रहेगी, जो अरुणाचल को और पूरे नॉर्थ ईस्ट को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। कल मैं राजस्थान के आखिरी छोर पर था और आज हिंदुस्तान के पूरब के आखिरी छोर पर खड़ा हूं। और कल राजस्थान में मैं कृषि कर्मण अवार्ड दे रहा था। मैं अरुणाचल के लोगों को हृदय से अभिनंदन करता हूं कि कल जो राजस्थान में अवार्ड दिए गए, उसमें नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों ने अवार्ड पाया है, और एक अवार्ड पाने वाला हमारा अरुणाचल प्रदेश भी है। यहां के किसानों ने टोटल फूड ग्रेन्स के लिए कमेंडेबल अवार्ड प्राप्त किया है,
मैं राज्य सरकार को, कृषि विभाग को और यहां के किसानों को इस सिद्धि के लिए हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। कल यहां के लोग मुझे राजस्थान में मिले थे और कल उनको राजस्थान में अवार्ड दिया गया है। ये सम्मान किसानों की मेहनत का सम्मान है। इन पहाड़ियों में भी, विपरीत प्राकृतिक अवस्था में भी कृषि क्षेत्र में उन्होंने जो नई सिद्धि प्राप्त की है, इसके लिए उनका अभिनंदन है। कल इनाम पाने वालों में आसाम भी है, मेघालय भी है और अरुणाचल भी है। नॉर्थ ईस्ट के इन तीनों राज्यों ने ये जो इनाम पाया है, इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। आज अरुणाचल को गति भी मिल रही है। आज अरुणाचल को ऊर्जा का भी आरंभ हो रहा है और गति और ऊर्जा के बिना प्रगति संभव नहीं होती है। अगर प्रगति करनी है तो ऊर्जा भी चाहिए, गति भी चाहिए। रेल व्यवस्था आपको गति देती है और आज 132 केवी वोल्ट का पावर ट्रांसमिशन लाइन का भी शिलान्यास हुआ है। करीब करीब 3,200 करोड़ रुपयों का प्रोजेक्ट है। ये जो रेलवे का प्रोजेक्ट किया, वो करीब करीब 4,200 करोड़ का प्रोजेक्ट। और आज अभी ये बिजली पहुंचाने के लिए जो ट्रांसमिशन लाइन का काम होने वाला है, वो करीब करीब 3,200 करोड़ रुपयों की लागत से होगा। ये बिजली के खंभे, ये बिजली के तार सिर्फ घर में दिया जलाने का काम करते हैं, ऐसा नहीं है। ये ऊर्जा विकास यात्रा में अहम भूमिका अदा करती है। जैसे भारत सरकार ने रेलवे के विकास के लिए एक नया अभियान छेड़ा है, वैसा ही हमने सपना देखा है। क्या हमारे हर परिवार में 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि मिले, ये आपका आशा पूरी हो। लेकिन ऐसे तो मिलेगी नहीं। बिजली उत्पन्न करनी पड़ेगी, बिजली पहुंचानी पड़ेगी, हर घर में लट्टू लगाना पड़ेगा, तब जाके बिजली पहुंचेगी। काम बड़ा कठिन है, काम बड़ा भगीरथ है, लेकिन किसी को न किसी को तो करना पड़ेगा। आपने मुझे आशीर्वाद दिए हैं इस भगीरथ काम करने के लिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाएंगे। आपके आशीर्वाद में ताकत है कि आपकी सारी आशा आकांक्षाएं पूरे हो सकती हैं। आपके आशीर्वाद में इतना दम है, देश के नागरिकों के आशीर्वाद में वो ताकत है कि आपके सपने पूरे होकर के रहेंगे। 24 घंटे बिजली, अगर हमें गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, हमें गरीबी से बाहर आना है, तो सिर्फ नारेबाजी से गरीबी नहीं जाती है। गरीबी से मुक्ति का रास्ता चुनना पड़ता है, रोड मैप बनाना पड़ता है और उस पर चल पड़ना पड़ता है। किसी घर में कमरे में अंधेरा हो और किसी को ले जाएं, बाहर एक कतार खड़ी कर दें और कहेगा आओ भाई ये अंधेरा दूर करो। एक जाएगा मानो,
और अंदर जाकर के पूजा पाठ में बैठ जाएगा, मंत्र तंत्र करता रहेगा, भूत प्रेत को बुलाता रहेगा, अंधेरा जाएगा क्या? जाएगा क्या? दूसरा क्यों बुलाएंगे? वो लेकर के कम्बल लेकर के अंदर से झपट मार रहा है, निकालो अंधेरे को, निकालो अंधेरे को, निकालो। निकलेगा क्या? कोई आकर के वहां पर एक छोटा सा दिया जलाएगा तो अंधेरा जाएगा कि नहीं जाएगा? उजाला आएगा कि नहीं आएगा? ये गरीबी को भी हटाना है तो हम सिर्फ नारेबाजी करते रहेंगे तो गरीबी नहीं हटती है। 40 साल से हम ये नारे सुनते आए हैं। गरीबी हटाने की जड़ी बूटियां पकड़नी पड़ेगी, उन जड़ी बूटियों को लेकर के निकलना पड़ेगा जो जड़ी बूटी गरीबी को हटाती है। सबसे बड़ी जड़ी बूटी होती है शिक्षा। अगर हम गरीब के घर में अगर हर बच्चों को शिक्षित करें, हर गरीब के झोपड़ी में भी अगर लिखने पढ़ना पहुंचा दें तो वो शिक्षा गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की उसको ताकत देती है और एक ही पीढ़ी में वो गरीबी से बाहर आ जाता है। उसी प्रकार से एक और रास्ता है बिजली। उसके परिवार को अगर बिजली से जोड़ा जाए तो उसके बच्चों को पढ़ने की सुविधा बढ़ती है, वे कंप्यूटर सीखना शुरू करते हैं, वे रात देर तक पढ़ पाते हैं, औरों के साथ स्पर्धा में खड़े रह सकते हैं और खड़े रह करके वे शिक्षा और दीक्षा के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। अगर ऊर्जा आती है तो गांव में छोटे मोटे कारोबार शुरू होते हैं, छोटे मोटे उद्योग शुरू होते हैं। किसान है तो अपनी फसल को संभालने के लिए व्यवस्था कर सकता है, उसमें से वैल्यू एडिशन कर सकता है, मूल्य वृद्धि कर सकता है। छोटे मोटे उद्योगों का नेटवर्क खड़ा होता है जो गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक बहुत बड़ा साधन बनता है। और इसलिए आज ये जो 3200 करोड़ रुपयों की लागत से ट्रांसमिशन लाइन लगाई जा रही है वो गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के हमारे अभियान का हिस्सा है। आपकी गरीबी को हटाने का ये हमारा एक रास्ता है। उस रास्ते को लेकर के हम आज आपके पास आए हैं। उसी प्रकार से हमने पिछले दिनों शिक्षा के क्षेत्र में एक किसान विकास योजना बनाई है। ये नॉर्थ ईस्ट के विकास की एक बृहद योजना बनाई है और उस बृहद योजना के अंदर नॉर्थ ईस्ट के जो होनहार बालक हैं, भले ही गरीब क्यों न हो, ऐसे 1000 बालकों को पसंद करके उनको स्पेशल स्कॉलरशिप दे करके उनकी अच्छी से अच्छी पढ़ाई हो, उस पर हम बल दे रहे हैं, जिसके कारण गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए वो भी हमारा एक मजबूत सिपाही बन जाए, हमारा साथी बन जाए। पढ़ लिख करके वो भी गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करे। गरीबी से मुक्ति पाने के लिए हमने इन रास्तों को चुना हुआ है और उन रास्तों के सहारे हम आगे बढ़ेंगे। आज एक तीसरे प्रोजेक्ट का भी प्रारंभ हुआ है और वो तीसरा प्रोजेक्ट है, जो लोग टीवी पर ये भाषण सुन रहे हैं उनको ये सुनकर के जरा आश्चर्य होगा। ये जो तीसरा प्रोजेक्ट है वो ईटानगर के नागरिकों को पीने का शुद्ध पानी पहुंचाने का प्रोजेक्ट है। करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा लागत ईटानगर के लोगों को
पीने का शुद्ध पानी मिले। आज राज्य के 29वें जन्मदिन पर ईटानगर के नागरिकों को शुद्ध पानी पहुंचाने का ये प्रोजेक्ट अर्पित करते हुए मेरे मन को आनंद भी होता है, थोड़ी पीड़ा भी होती है। जब दुनिया जानेगी कि ईटानगर राजधानी यहां के लोगों को पीने का शुद्ध पानी पहुंचाने में आजाद हिंदुस्तान को 60 साल लग गए, ये जब सुनता हूं तो पीड़ा होती है। लेकिन आज जब शुद्ध पीने का पानी पहुंच रहा है तो मन में संतोष होता है कि चलो भाई, कुछ अच्छे काम मेरे ही नसीब में लिखे हुए हैं। और इसलिए, लेकिन इतने पहाड़ हो, भरपूर पानी हो, जितना पानी नॉर्थ ईस्ट के पास है, हिंदुस्तान में औरों के पास नहीं है। लेकिन फिर भी ये इलाका प्यासा है, इससे बड़ी पीड़ादायक क्या बात हो सकती है। समंदर के तट पर रहने वाला प्यासा हो वो तो मैं समझ सकता हूं, क्योंकि समंदर विराट होने के बाद भी उसका पानी पीने योग्य नहीं होता है। लेकिन यहां तो शुद्ध पानी होता है, लेकिन पानी आता है, चला जाता है। हमारे यहां कहावत है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी ये पहाड़ के काम नहीं आती है। ऐसा कहते हैं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती है। जो जवान होता है पहाड़ में, वो जितना जल्दी से जवान होगा, वो अपना पहाड़ छोड़ करके रोजी रोटी कमाने कहीं चला जाता है। सेना में चला जाएगा या दिल्ली चला जाएगा, मुंबई चला जाएगा, मेहनत मजदूरी करेगा, रोजी रोटी कमाने का प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि अपने जहां रहता है वहां रोजी रोटी के संसाधन नहीं होते हैं। अपने बूढ़े मां बाप के लिए जवानी अपनी जिन पहाड़ों में बिताई, उन पहाड़ों को छोड़ करके घनी आबादी वाली जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती है। पहाड़ का पानी भी, कितना ही पानी पहाड़ पर आए, पहाड़ के काम नहीं आता है। वो आता है, चला जाता है, बह जाता है। लेकिन मुझे इस कहावत को बदलना है। मुझे पहाड़ की शकल सूरत ऐसे बदलनी है कि पहाड़ की जवानी भी पहाड़ के काम आए और पहाड़ का पानी भी पहाड़ के काम आए। और आज का विज्ञान, आज की टेक्नोलॉजी ये संभव कर सकती है। ये पहाड़ का पानी कैसे काम आएगा? भाइयों बहनों, मैं अरुणाचल के भाइयों से आग्रह करने आया हूं। आपके पास पानी एक बहुत बड़ी ताकत है। इस ताकत को पहचानिए। आपकी जवानी और आपका पानी दोनों दमदार है। अगर आप इसकी ताकत नहीं समझोगे और ये पानी बहता ही चला जाएगा, तो जैसे जवानी चली जाती है, पानी भी चला जाएगा और प्रगति ठहर के आएगी, प्रगति रुक जाएगी। मैं जानता हूं अरुणाचल प्रदेश के लोग कुछ हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है, पावर प्रोजेक्ट, उसके विषय में उनकी राजी नाराजी है। किसी समय नेपाल में भी ऐसा ही था, भूटान में भी ऐसा ही था।
नेपाल के साथ हमने समझौता किया, भूटान के साथ हमने समझौता किया, और वहां भी उतना ही पानी है जितना अरुणाचल प्रदेश में है। और वहां पर बिजली के कारखाने लगाने के लिए भारत सरकार जुड़ी है। अकेली बिजली के माध्यम से नेपाल और भूटान की पूरी आर्थिक ताकत बदल जाएगी। सुखी देशों में वो परिवर्तित होने वाले हैं। और पानी से बिजली निकाल करके वो बिजली हिंदुस्तान खरीदेगा और कमाई भूटान और नेपाल को होगी। भाइयों बहनों, हिमाचल प्रदेश ने हमारे ही देश में पानी में से बिजली में सफलतापूर्वक आगे बढ़ा। हिमाचल की आर्थिक स्थिति में बदलाव आया। ये ताकत आपके अंदर भी है। ये बात सही है कि इस प्रकार के प्रोजेक्ट के लिए जिन लोगों को विस्थापित होना पड़ता है, जिन लोगों को नुकसान झेलना पड़ता है, उनके लिए पूरी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दोनों चीजों पर बल देना चाहिए। कोई गरीब से गरीब परिवार दुखी नहीं होना चाहिए। उनको कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। पहले से अच्छी जिंदगी का अवसर मिलना चाहिए। और दूसरी तरफ बिजली पैदा करने की दिशा में अरुणाचल प्रदेश ने आगे बढ़ना चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं, अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान को उजाला दे सकता है। हिंदुस्तान क्या अरुणाचल प्रदेश को उजाला देगा? यह ताकत आप में पड़ी है। उस ताकत को अगर आप पहचानेंगे तो अरुणाचल का भाग्य बदल जाएगा। और इसलिए मैं आपके साथ जुड़ करके काम करना चाहता हूं। आपसे कंधे से कंधा मिला करके काम करना चाहता हूं। मैं आपके एक सेवक के रूप में आपके पास आया हूं, आपके एक साथी के रूप में आया हूं। आइए हम मिल बैठ करके सिर्फ 132 वोट की क्यों, हम पूरी ताकत से व्यवस्था क्यों खड़ी न करें? अरुणाचल हमारे साथ चले, हम अरुणाचल के साथ चले, हम कंधे से कंधा मिला करके चलें। आप देखिए दुनिया बदलती है कि नहीं बदलती है। सोलर एनर्जी, इन दिनों अपना अभियान चला है। सोलर एनर्जी, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, 5-10 परिवार रहते हैं, मुझे उनको भी बिजली पहुंचानी है। सोलर योजना के माध्यम से पहुंचानी है ताकि गरीब के घर में दिया जले और गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए वो मेरा सिपाही बने। मुझे गरीबों की फौज तैयार करनी है। इसी फौज से मुझे गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ना है और गरीबी से देश को मुक्ति दिलाने में सफलता पाके रहना है। और इसलिए ऊर्जा हो, शिक्षा हो, इन माध्यमों से आगे चलना है। भाइयों, आज ईटानगर को शुद्ध पानी पहुंचने वाला है और आने वाले दिनों में ये व्यवस्थाएं टूरिज्म को भी बल देती है, टूरिज्म को भी ताकत देती है। और इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल दें, हम विकास की नई योजनाओं पर बल दें और इन योजनाओं के माध्यम से हम नई नई स्थितियों को पाने का प्रयास करें। पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए 2014-15 के बजट में 53,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ विकास की नई नई योजनाओं को हमने बनाया है। ये कम रकम नहीं है, पाई पाई का उपयोग होना चाहिए। आप समझ गए? पाई पाई का उपयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये पैसा जनता का है कि नहीं है? ये जनता के काम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये किसी की जेब में नहीं जाना चाहिए ना। हर पाई पाई का हिसाब मांगोगे कि नहीं मांगोगे? मेरे से भी मांगना। मैं जवाबदार हूं, आपको जवाब दूंगा। और सरकारें राज्य की हो या केंद्र की हो, जनता को जवाबदेह होनी चाहिए। पैसों की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है।
अगर पाई पाई योजना के साथ सही रंग से सही जगह पे खर्च की जाए, समय पे खर्च की जाए, तो हिंदुस्तान कहीं से कहीं पहुंच सकता है। यह आपको मैं विश्वास दिलाने आया हूं भाई। भाइयों बहनों, हमने आने वाले दिनों में यहां पर एफएम रेडियो के लिए भी बड़ा नेटवर्क खड़ा करना तय किया है। कुछ ही समय में करीब करीब 18 नई एफएम चैनल जिसका ऑक्शन होने वाला है, जिसका लाभ जरूर मिलेगा। 2G, 3G, 4G, अब मोबाइल फोन के बिना लोग जी नहीं सकते, वो जीवन का हिस्सा बन गया है। लेकिन अगर कनेक्टिविटी नहीं है, स्लो है, तो आदमी तंग आ जाता है। उस स्थिति को बदलने के लिए भी नॉर्थ ईस्ट को विशेष लाभ कैसे मिले, उस दिशा में भी हमने काम प्रारंभ किया है। 6 नई एग्रीकल्चर कॉलेज। नॉर्थ ईस्ट की अपनी एक ताकत है। नॉर्थ ईस्ट हिंदुस्तान का ऑर्गेनिक फार्मिंग का कैपिटल बन सकता है, यह ताकत है। आज भी नॉर्थ ईस्ट में केमिकल फर्टिलाइजर की आदत कम है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग का जितना ब्रांडिंग होना चाहिए, मार्केटिंग होना चाहिए, उतना नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि पूरा नॉर्थ ईस्ट दुनिया के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग पाने का एक बहुत बड़ा कैपिटल बन जाए, और दुनिया में जो भी लोग होलिस्टिक हेल्थ केयर में विश्वास करते हैं, वो ऑर्गेनिक चीजें पसंद करते हैं, वो यहां के फल हो, यहां का अनाज हो, ये ऑर्गेनिक चीजें उनको बाजार में मिलेगी। दुनिया आपके यहां आकर के खड़ी रह जाएगी माल खरीदने के लिए, और रुपया डॉलर में जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भाई, ये ताकत है नॉर्थ ईस्ट में। और हम इसके लिए 6 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को चालू करने वाले हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम काम देने वाले हैं। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, हमने एक और काम शुरू किया है। पहले नॉर्थ ईस्ट के लोगों को छोटा सा भी काम हो तो दिल्ली जाना पड़ता था। बार बार मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, अफसर हो, जब भी देखो दिल्ली। क्यों? क्योंकि दिल्ली वाले यहां देखते नहीं थे। हमने बदल दिया है। मैं मेरे मंत्रियों को महीने में 2 बार यहां भेजता हूं, दौरा कर रहे हैं, और पूछने लगे हैं कि बताओ भाई पैसे भेजे थे, क्या हुआ, हिसाब मांगना शुरू किया है। मैं भारत सरकार के अफसरों को लगातार भेज रहा हूं। डोनर मिनिस्ट्री के द्वारा अफसर आते हैं, वरिष्ठ अफसर आते हैं, यहां के अफसरों के साथ बैठते हैं, बताओ भाई क्या कठिनाई है, हम रास्ता निकालेंगे। ये जिम्मेवारी है, और भारत सरकार प्रोएक्टिव होकर के जिम्मेवारी निभा रही है। पिछले 2 महीने से काम मैंने शुरू किया है। आने वाले दिनों में ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और इन दिनों मैं मेक इन इंडिया का अभियान चला रहा हूं, लेकिन मैंने डोनर मिनिस्ट्री से कहा है कि जैसे मेक इन इंडिया का हमारा अभियान है, लेकिन डोनर मिनिस्ट्री के लोग मेक इन नॉर्थ ईस्ट उसका पर्सपेक्टिव प्लान तैयार करें, योजना बनाएं। मेक इन नॉर्थ के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पर योजना बनाएं। इस पर काम चल रहा है, और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में विकास की नई ऊंचाइयों पर हम नॉर्थ ईस्ट को ले जाएंगे। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर, राज्य के स्थापना दिवस पर आप सबके बीच आने का मुझे अवसर मिला। आपने मेरा स्वागत सम्मान किया, प्यार दिया, और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहां आए, और मैं देख रहा हूं वहां पहाड़ियों पर ही भीड़ ही भीड़ है। हर मंजिल पर कोई न कोई खड़ा है, चारों तरफ अरुणाचल प्रदेश का यह प्यार। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अब दिल्ली हर पल
आपकी सेवा में तैनात है और मैं आपका सेवक दिल्ली में बैठा हूं। मैं आपके लिए काम करने के लिए हर पल तैयार हूं और आज इस राज्य के स्थापना दिवस के फेस्टिवल को उसका उद्घाटन करते हुए मुझे गर्व हो रहा है और मैं इस फेस्टिवल का उद्घाटन घोषित करता हूं और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, दोनों मुट्ठी बंद करके पूरे हाथ ऊपर करके बोलिए, जय हिंद। पूरी ताकत से बोलिए। आप लोग तो जय हिंद पूरे हिंदुस्तान को सुनाते हो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। Out cheer and joyous cheerfulness in the audience, thanking the Prime Minister बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, with his presence. आपके आशीर्वचनों तथा मार्गदर्शन के लिए हम पूरे अरुणाचल प्रदेश की ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। Development of the state and its people. प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद अभी प्रस्तुत किया जा रहा है अरुणाचल के विभिन्न जातियों एवं जनजातियों के सामुदायिक लोक नृत्य। खुशी के इस मौके पर हम अपने The people of Arunachal Pradesh acknowledges the best gift of 29th Statehood Day is the express train from Naharlagun to New Delhi. जिले से आए हुए गालो कल्चरल ट्रूप जो प्रस्तुत करेंगे अराम डांस। अभी सारी नजरें हैं मैदान पे जो कि सामुदायिक नृत्य के लिए उत्सुक है। प्रधानमंत्री जी अवगत हैं अरुणाचल की नृत्यों से क्योंकि वो पहले भी 2 बार आ चुके हैं। Here we have the Irap dance of the Galo tribe from the West Siang district of Arunachal Pradesh. अभी आप देख रहे हैं बुगुन ट्राइब का बुगुन डांस जो कि हैं वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से। गालो जनजातीय लोगों का पारंपरिक नृत्य अराम डांस और ठीक सामने वेस्ट कामेंग जिले से आए हुए the Adi कल्चरल tribe of जो East प्रस्तुत Siang कर रहे district. हैं बुगुन जनजातियों का और उनके पीछे हैं बुगुन जनजाति के बुगुन नृत्य जो कि वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से हैं। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिले से ही अब मेजी जनजातियों का Followed by पारंपरिक Mishmi लोक tribe नृत्य dance from the साजलो Anjao डांस district. मंच के समक्ष नृत्यांगनाएं प्रस्तुत करती हुई पारंपरिक वेशभूषा में सजकर अब ईस्ट सियांग जिले की कल्चरल ट्रूप जो Here we प्रस्तुत can कर रहे हैं see आदि honorable chief तेलो guests नृत्य। enjoying the tribal dance. अरुणाचल प्रदेश दुनिया के सामने अनेकता में एकता का बहुत ही खूबसूरत उदाहरण आप प्रस्तुत देख करता रहे हैं है। दृश्य, उसी की एक झलक सबसे प्रथम में है उपस्थित गालो जनजाति के इराब डांस के नृत्य की और उनके पीछे बुगुन डांस जो कि बुगुन जनजाति वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से। इसमी जनजातियों का पारंपरिक ईगू नृत्य जिसे पुजारियों के द्वारा किया जाता है। Here we can see the red blouses, the Miji dance from the Miji tribe from West Kameng After the district. Igu dance और उनके belonging to पीछे the tribe Igu Mishmi, आदि जनजाति से Dibang डेलोंग district. नृत्य कर रहे हैं Next is ईस्ट Sri सियांग Dalo डिस्ट्रिक्ट के dance लोग। of the Tagin tribe belonging to the Upper Subansiri district of Arunachal Pradesh. हर जाति की अपनी ही खूबियां हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं
रंग बिरंगे वस्त्र और विभूषण से लैस हैं। It's followed by the Daminda dance from the Apatani tribe of the Lower Subansiri district. उनके बाद आ रहे हैं लोअर दिबांग वैली से मिश्मी जनजाति के ईगू डांस ट्रूप। On the front now, the war dance of the Nokte tribe from the Tirap district of Arunachal Pradesh. They are followed by the Sri Ome dance of the Tagin tribe from Upper Subansiri district. तागिन जनजाति की स्त्रियां जो कि आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत वस्त्र धारण करे हुए हैं और ठीक उनके पीछे अंजाव डिस्ट्रिक्ट से मिजू मिश्मी ट्राइब अपना सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। Then the war dance of the Wangcho tribe of Longding district. लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट से वांचो ट्राइब का वाद नृत्य। Of Arunachal Pradesh. Then we have the Singpho tribe dance of the Changlang district. From Longding district, we have here the Wangcho tribe war dance. चांगलांग जिले के योबिन जनजाति लोगों का लोक नृत्य सेगू नृत्य। उसके पश्चात चांगलांग जिले से ही तुत्सा जनजाति वांचो लोगों का योद्धाओं के बाद नृत्य अभी आप देख रहे हैं योबिन जनजाति जो कि फिर चांगलांग डिस्ट्रिक्ट से है। पोंगतू के पश्चात ईस्ट कामेंग जिले से आए हुए कल्चर ट्रूप आपके समक्ष मीजी जनजातीय लोगों का लोक नृत्य प्रस्तुत करते हुए ईबीजू नृत्य। From Changlang district. और उनके पीछे हाकामीजी जनजाति की नृत्यकाएं जनजातीय लोगों का नृत्य जो कि हैं ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से और उनके साथ पुरोहित समुदाय की नृत्यकाएं It's a Bori tribe dance from the West Siang district of Arunachal Pradesh. The ladies are carrying a traditional hand-made basket that they use in the field. फिर से ईस्ट सियांग से आदि जनजाति की स्त्रियां अपना नृत्य पेश करते हुए Quickly followed by the Galo tribe dance from the West Siang district. Finally, और अंत में आप देख रहे हैं बुया जो कि अरुणाचल की प्रमुख जाति निशी समुदाय से है। then we have बहुत ही बड़ी तादाद में निशी this is जनजाति a traditional Buya Nishi लोगों dance. का नृत्य आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए भूया नृत्य। This is a ceremonial dance invoking the spirit before any important work has to be done in the और अब household or in the रिखापादा family. निशी नृत्य आपके समक्ष। बुया निशी नृत्य के बाद अभी प्रस्तुत किया जाएगा निशी
ये थे अरुणाचल के विभिन्न जातियों एवं जनजातियों के खूबसूरत नृत्य। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे अतिथिगण और सभा में जनता सभी ने इसका भरपूर आनंद लिया। Chief Secretary. समारोह के समापन पर मैं राज्य सरकार की ओर से और अरुणाचल प्रदेश की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। हम विश्वास दिलाते हैं कि आपके आशीर्वाद और आपके मार्गदर्शन से प्रदेश का विकास और भी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। हम धन्यवाद देते हैं माननीय केंद्रीय रेल मंत्री जी और राज्य रेल मंत्री जी का और गृह राज्य मंत्री भारत सरकार जो आज इस अवसर पर हमारे साथ हाजिर हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे कार्यक्रम के निर्देशन के लिए हम सबको जो प्रोत्साहन दिया वो यहाँ आए हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। माननीय विधानसभा अध्यक्ष एवं गृह मंत्री जी अरुणाचल प्रदेश सीएल चेयरमैन नीपको और उनकी सारी टीम जो हमारे प्रोजेक्ट यहाँ आज शुरू हुए हैं उनके लिए उन्होंने जो प्रयत्न किए हैं हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अंत में सभी हमारे कर्मचारी, अधिकारी और जनता, आप सबका धन्यवाद और सबको शुभकामनाएं। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। Here we can see Prime Minister waving to the audience. यहाँ से प्रस्थान करेंगे। प्रधानमंत्री अब समारोह से विदा हो रहे हैं अरुणाचल की जनता को नमन करते हुए, और अरुणाचल की जनता भी आभारी है कि वो हमारे राज्य दिवस के अवसर पर हमारे साथ शामिल हुए, और हम उनके अगले दौरे की ईग्रता प्रतीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री के निकास के बाद भी अरुणाचल उत्सव 2015 जारी रहेगा।